article titled Complex Anal Fistula Treated with Iptacopan. The authors of this article is Dr. Anil Kumar, Dr. Ashish Sharma, Dr. S.J. Gota, Dr. Ashish Verma, Department of Sharia Tantra, Banaras Hindu University, Varanasi. The journal name is Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. Publisher is published by Elsevier, and we already have the DOI here. If you want to check out, then you can just go and check. Article type is a case report. Keywords, we have anal fistula, IPAC, and EAUS. So in abstract, we have three things. One, it is the background. The second, it is the case presentation. And the third, it is the conclusion. Okay? So what is actually anal fistula? Before understanding the term anal fistula, we have to understand first what is fistula. So fistula is nothing but it is a communicating tract, okay, between the hollow viscous and the skin. Okay? So if that tract runs from the hollow viscous to the skin, we call it the external fistula. Okay? And if the tract runs between the hollow viscous itself, it is known as internal fistula. Then next chances of recurrence will be there. Okay? Then secondary extension, where we already have in this case we have the extension to the supralevator extension. Absence and improper diagnosis and surgery. So what is anal fistula? To understand the term anal fistula, we have to understand three things. One, it is infection. Second, it is abscess, and then third, it is line. So these three things goes in sequence. Okay. So firstly, there will be infection. Now, what kind of infection is there in anal fistula? Okay, it is a chronic, persistent type of infection. It means that it takes place for longer duration, and it should be a persistent type of infection. Then after that, there will be infiltration of the inflammatory cells or the inflammatory markers here in the cryptoglandular part. Okay. After that, then there will be tract formation. Okay. So the next part will be given by Anil. Just remind you, charge. First, we will understand charge सूत्र क्या होता है. So charge is made up of two words, charge plus सूत्र. Charge means alpha, and Acharya used to say in Sutra chapter 11, तत्र छनन व छारा मतलब छनन डिस्ट्रक्शन के लिए डिसलेटेड टिश्यू और अनवांटेड टिश्यू का, और छनन मतलब खत्म कर देना उसको टोटल. और उसके बाद शस्त्र अनुशस्त्र व्यायाम छात्र प्रधानतम छेद देते लेखन कारणत्व त्रिदोष घनत्व मतलब छेदन करता है, लेखन करता है, भेदन करता है और त्रिदोष घन होता है. सबसे बड़ी ये शस्त्र और अनुशस्त्र में प्रधान माना गया, सुपीरियर माना गया है. एंड सूत मींस थ्रेड मतलब एक प्योर लिनिन थ्रेड होता है. तो चार सूत जनरली बनाते कैसे हैं? हम पहले थ्रेड लेंगे, थ्रेड को हम पे वुडन स्टैंड होता है तो उस पे हम रैप करते हैं. करने के बाद सबसे पहले हम एक बेस लेते हैं. कि जैसे जनरल प्रोसीजर स्लीव लेटेक्स, और जो हमने जिसका हमें बनाया है, जैसे ऑथर ने यहाँ पे अपमार छात्र यूज किया है, तो उसको पहले अपमार को हम एस में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर फॉर्म बनाएंगे. जब बेस एजेंट हम इस पे लगा देंगे उसके बाद हम छात्र अप्लाई करेंगे. उसके बाद फिर उसकी 3 कोटिंग से ड्राई करने के बाद उसको प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे स्टिमुलेटेक्स और हरिद्र पाउडर यूज करते हैं कि उसको इन्फेक्टेड प्रोटेक्टेड रहे और उसका छाछ. उसके बाद छाछ इज कंसीडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मॉडल. गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मॉडल मींस जब हम इस छाछ को मतलब जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ना किसी डिजीज जैसे फिस्टुला एनोगाई, तो मिनिमम इन्वेसिव प्रोसेस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और सबसे बड़ी कि इसका रिकरेंस रेट कम होता है. उसके एंड मैनेजिंग एनल फिस्टुला इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस हैज लो रिकरेंस रेट एंड नो इम्पैक्ट एनल क्वांटिटी. कि जनरली सर्जिकल प्रोसीजर होता है ना फिस्टुला एनल का, तो क्या होता है कि जो एनल ओपनिंग होती है ना, इसका मतलब ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं. कोई प्रोसीजर मॉडिफाई होती है तो उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए इस केस में इफ्टेक प्रोसीजर यूज किया है. इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला स्ट्राइक विद एप्लीकेशन ऑफ छाछ. अब ये डिफरेंट कैसे है?
इसमें जैसे डोनाल्ड ऑल्टर ने बताया था कि हम एक पॉइंट बनाते हैं, तो जैसे मल्टीपल ट्रैक है तो हम एक पॉइंट ढूंढेंगे जो कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट पे फिर हम क्या करेंगे, इंसिजन बनाएंगे। इंसिजन इसमें क्या होता है, हम एक क्षार सूत्र की हेल्प से मतलब एक उसके हेल्प से ना हील करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में क्या होता है कि मल्टीपल क्षार सूत्र बनाने के लिए हर एक ट्रैक में मल्टीपल क्षार सूत्र हमें यूज करना पड़ेगा। बट डिफेक्ट प्रोसीजर में हम यहाँ पे कर लगाते हैं जिससे इनका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्ट खत्म हो गया इसका, तो ये अपने आप हील कर जाएंगे। हील करने के बाद क्या होगा, एक क्षार सूत्र की एप्लीकेशन से तो ये पूरा मिनिमम स्कार में और हील हो जाएगा। देन इसके बाद with this technique all type of non specific complex fistula in anal heal defective, मतलब जितने कॉम्प्लेक्स फिस्टुला एनो होता है ना वो हम इससे हील कर सकते हैं। देन ये प्रोसीजर है, मैं एक फेवरेट प्रोसीजर है कि हम कैसे बनाते हैं क्षार सूत्र उसका। देन पेशेंट, अब हम केस रिपोर्ट है तो पेशेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेल पेशेंट इज 34 के कंप्लेंट ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ बॉयज इन पेरिएनल रीजन विद ऑन एंड ऑफ पेन फॉर 6 मंथ्स। बॉयज मतलब होता है इन्फेक्शन इन हेयर फॉलिकल, मतलब वहां पे एक हेयर फॉलिकल है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से। विद ऑन एंड ऑफ पेन फॉर 6 मंथ, तो पेशेंट इनिशियली माइल्ड सिम्टम्स तो वो किसी डॉक्टर के पास दिखाने नहीं गया, पर जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का कंडीशन आ गया था। कि जब हम पेशेंट आता है, हम क्लिनिकल क्लास आते हैं तो क्या जनरली पेशेंट आएगा, पहले हम हिस्ट्री लेंगे, फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तब हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हिस्ट्री जैसे चीफ कंप्लेंट एंड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस हमने एक्सप्लेन किया। अब हम करेंगे कि विजुअल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमने किया तो हमने क्या क्या फाइंडिंग्स मिली। देन उसके बाद डिजिटल रेकॉर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट यूज करके जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले विजुअल स्किन डिस्कलरेशन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एनाग्राम, मतलब स्किन डिस्कलरेशन डायग्राम है, स्किन डिस्कलरेशन है लेफ्ट साइड ऑफ एनाग्राम, मतलब डोनल्ड पहले बताया कि हमें लेफ्ट साइड में है ये। देन एक्सटर्नल ओपनिंग एट 3 o'clock पोजीशन, जैसे फर्स्ट लेवल में जाते हैं जब हम पढ़ते हैं तो उसके एनल फिस्टुला में ना डिफरेंट ओपनिंग होती है, डिफरेंट क्लॉक, जैसे 6 o'clock 3 o'clock 12 o'clock डिफरेंट ओपनिंग होती है। उसके बाद लिटिल फर्स्ट वाज क्रूजिंग, तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन, विजुअली ऑथर ने क्या क्या देखा। देन उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इंटीग्रेशन फैट पोस्टीरियर टू एनल ग्लैंड, मतलब इंटीग्रेशन मतलब स्किन हार्डनिंग मिली जब एग्जामिनेशन किया गया। बोगिनेस ऑन लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ एनल ग्लैंड, मतलब वहां पे स्वेलिंग टाइप का मिला जिससे वो फिस्टुला में ना डिफरेंट ओपनिंग होते हैं, डिफरेंट क्लॉक, जैसे 6 o'clock 3 o'clock 12 o'clock डिफरेंट ओपनिंग होती है। उसके बाद लिटिल फर्स्ट वाज क्रूजिंग, तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन, विजुअली ऑथर ने क्या क्या देखा। देन उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इंटीग्रेशन फैट पोस्टीरियर टू एनल ग्लैंड, मतलब इंटीग्रेशन मतलब स्किन हार्डनिंग मिली जब एग्जामिनेशन किया गया। बोगिनेस ऑन लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ एनल ग्लैंड, मतलब वहां पे स्वेलिंग टाइप का मिला जिससे वो माना कि इंडिकेट कलेक्शन ऑफ एक्सेस। और एक्सटेंडिंग लेटरल ट्यूबर्स, मतलब हिस्टोरेक्टल फोसा लेवेटल एनाई मसल पूरा एक्सटेंशन, उसके बाद उसमें पता एग्जामिनेशन से डायग्नोस्टिक, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट उसने यहाँ पे ऑथर ने मेनली एंडोवेनल अल्ट्रासोनोग्राफी यूज किया था। रिसर्च पेपर में एक एमआई हिस्टोग्राम भी मेंशन है, उसमें क्या होता है हम डाई यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करते से, फिर एमआरआई से देखते हैं कि डाई से कि कितने कहां तक वो जो ट्रैक वो एक्सटेंडेड है पूरा, उसमें पूरा एक्सटेंशन देखते हैं ये। और एंडोवेनल अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों यूज किया, ये वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये इमेजिंग से जब इसका इमेज दिखाता है उससे सर्जन को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ ये यहाँ पे है तो इससे हम थोड़ा कर सकते हैं। और कंफर्म डायग्नोसिस दिया कि पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांस स्फिंक्टेरिक फिस्टुला विद एक्सटेंशन। थेरेपेटिक इंटरवेंशन, मतलब क्या क्या प्रोसीजर किया गया, तो क्या क्या प्रिवेंशन और क्या क्या केयर की गई। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। इन आयुर्वेदा वी लर्न पूर्व कम, प्रधान कम, पश्चात कम। पूर्व कम में पेशेंट की तैयारी, उसका साइड की तैयारी, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्म कंसेंट की हम ये करने वाले हैं, आपको हम इनके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट को लिखोटोमी पोजीशन में लेटाया गया, फिर लोकल एनेस्थीसिया लाइडोकेन यूज किया गया। ऑपरेटिव प्रोसीजर में इफेक्ट प्रोसीजर क्या था, 2 सेंटीमीटर ब्लंट डाइसेक्शन वर्टिकली बेस्ड ऑन पोस्टर का नाम है इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला। तो जो हमने इंसिजन लगाया है ना वो हमने
फिस्टुला ट्रैक्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया कि हम वहां से पूरे जो ट्रैक्ट है वहां रीच कर पाए और उससे हम जितना पस है उसके अंदर वो हम क्लीन कर पाए, ड्रेन कर पाए। तो पूरा अगर इंटरसेप्ट करने के बाद क्या किया, डाइसेक्शन लगाने के बाद पूरा ड्रेन किया, ड्रेन करने के बाद उसको सैलाइन से वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर हमने झाड़ सूत्र अप्लाई किया, क्योंकि वॉश करना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पस रह जाता है वो दोबारा फॉर्मेशन कर सकता है। तो उसके वजह से पूरा क्लीन करने के बाद अब हमारे झाड़ सूत्र और इंटरनल ओपनिंग उसकी 6 ऑफ पे है एनएल फिस्टुला की। तो अब हमारे इंसर्टेड सिपर प्रोब, तो प्रोब से हमने पूरा उसे अप्लाई करके इंटरसेक्ट किया एंड इंटरनल ओपनिंग है, फिर हमने उसका हीमोस्टेसिस अचीव किया और ड्रेसिंग कर दी। देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, 6 बात होता है कि हम जो पेरिनियल रीजन होता है ना उसको हम डिप करते हैं ल्यूकवार्म वाटर में, वो एक तो हीलिंग जल्दी करता है, पेन रिलीफ करता है 6 बात। उसके बाद ड्रेसिंग विद पंचवल्कल क्रीम, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है पंचवल्कल की, वो ड्रेसिंग के लिए हमने हेल्प किया। उसके बाद आयुर्वेदा मतलब मेडिकेशन क्या क्या दिया, त्रिफ्लागोग्लू 2 टैबलेट दिन में 3 बार आफ्टर मील। त्रिफ्लागोग्लू इसलिए दिया क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है यहाँ पे। और फिर त्रिफ्लाजून ये बाउल की कंसिस्टेंसी सॉल्व करने के लिए मेनली कि डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए। देन पेशेंट डिस्चार्ज आफ्टर 2 days, तो 2 दिन के बाद पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया। और इम्पैक्ट प्रोसीजर का एक बेनिफिट ये भी है कि झाड़ सूत्र में लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल रहना पड़ता है, बट इम्पैक्ट प्रोसीजर 2 दिन में डिस्चार्ज नहीं मिल जाता। अब शो टाइम मतलब फॉलो अप क्या क्या चेंजेस है उसके प्रोसीजर के टाइम। सबसे पहले मार्च 2021 में पेरिनियल एब्सेस एंड पेन टू ट्रीटमेंट फ्रॉम लोकल डॉक्टर एंड रिलीव। अप्रैल 20 में फर्स्ट डिस्चार्ज। बस यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट कि छाछ सूत्र चेंज वीकली, देन और कट टू डन मतलब छाछ सूत्र का कटिंग हो गया। आफ्टर 4 months ऑफ फॉलो अप पेशेंट डिडंट कंप्लेन एनी डिस्चार्ज और डिस्कम्फर्ट। इसका इंपॉर्टेंट है प्रोसेस हमने पूरे पेपर में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले इफेक्टिवनेस ऑफ छाछ सूत्र, जैसे ये बहुत मोस्ट इफेक्टिव रिलायबल मेथड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला इन एनो। आयुर्वेदा में हम इसे करते हैं बगंदर से। एंड मिनिमम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और ड्रॉबैक्स को हमने पढ़ा, पीछे ही हमने देखा था, लिमिटेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट, नो आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, मतलब कॉम्प्लेक्स फिस्टुला मतलब होता है ना उसके लिए आइडियल छाछ सूत्र माना गया, इफेक्ट माना गया है। और कन्वेंशनल के रिकरेंस रेट वेरीज 0.7 to 26.5% और फेटल इंटरवेंशन मतलब कंट्रोल ऑफ बाउल मूवमेंट, मतलब कभी क्या होता है ना अपने कंट्रोल में ये बैठे हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो अपने आप रिलीज हो गया स्टूल, तो फीटल इंटरवेंशन। एडवांटेज क्या था, शॉर्टर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ कन्वेंशनल छाछ सूत्र मेथड। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस है सब इरेडिकेटिंग द इन्फेक्टेड एनर्जी रूट कॉज, मतलब इसमें क्या है ना रूट कॉज को ही हटा देगा तो इसलिए रिकरेंस का रेट कम है। देन डिजिटल ट्रैक ट्रीटमेंट नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। देन इंपॉर्टेंट क्या था, एंडो एनल अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत रिकमेंड किया है क्योंकि इससे डिटेक्टिव 95% जो ओपनिंग होती है वो डिटेक्ट करा जा सकता है। फिर 60 years from here to conventional surgery. Then after that the doctor explained, then patient opted for Shah Sutra with IFTAC technique. Within few days, all symptoms were subsided and felt as if it was not suffering from any disease anymore. Procedure was patient friendly and could resume daily work within few days. In conclusion, what happened is that the case report that we are dealing with is complex anal fistula. So complex anal fistula, it is very difficult to handle. But with this procedure and with proper diagnosis and assessment, we can definitely treat it accordingly. But there is one drawback of IFTAC because here we are actually dealing with case report. So we need extensive data in order to actually accept it widely. Presentation. Now we'll move ahead with the second part of today's session, that is the analysis part. For that, I would like to invite Dr. Sir. So what is the definition? As he has already said, it is an abnormal chronic tunnel-like connection. Means there are different type of pathways are inside your body which are connected. और जितना भी कनेक्शन बढ़ता जाएगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा. Like there is a single tunnel, तो single thread is used. There are more than tunnel, then more than thread inspection. अब
पढ़ाऊंगा जब ये सब बात आएगा वहां पे। देन देयर आर सर्टेन ट्रैक लाइक हियर ऑलरेडी मेंशन, पहले सिंगल होगा देन एक्सिस होगा, देन वो ट्रैक में डिफरेंशिएट हो जाएगा या फॉर्मेट हो जाएगा, तो वो इटियोलॉजी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का बात करें देयर बेसिकली टू टाइप्स ओनली, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल मींस लो लाइन और मिनिमल और नो स्पिंडल मसल इन्वॉल्व, और अदरवाइज वो ज्यादा हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है, देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन इफ यू आर नॉट टू ट्रीट देम वेल। So these parts are other than the paper what we have discussed. What we normally use. अभी क्या किया हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो some percentages are given here which are already mentioned in paper. This is a new technique. You have to understand first of all the name. So like they have already discussed, the name is intersection of vestibular tract with application of Charles-Leclerc. So you have to stop something, then you have to heal it. Okay. So case representation, as we already know, that here the external opening was in 3 o'clock position. When we are going to study the positions, there will be just position like appendix, 3 o'clock, 4 o'clock, different positions are there, and likewise complexity also increases. Okay. Diagnostic criteria, there are two things were here. Digital rectal examination means you have to insert your finger actually. Okay, that was the part which was there here. And then EAUS. EAUS is specially for this particular treatment, means this particular type of findings, wherever you have to find some spaces. Then reconstruction. Reconstruction, we have to again reconstruct whatever has been damaged. That is called as 3D reconstructions. Then US finding जो पहले क्या था, it's 98.5%. It going to track 100 means nearly you can say more than 90% its efficacy is there. And this is the phenomena or the passage or the technique what they have used. So you can discuss there. So क्या करता है ये? These are the point. It reduce duration, minimal hospitalization, focused treatment and continuous preservation. तो ये जो last वाला point है ये क्या होता है? Like you can't control the things. Your stool can't be controlled, your urine can't. तो इसमें ये problem ज्यादा नहीं आता है. Then critical analysis अगर पेपर की बात करें तो documentation is properly done. Integration with modern technique में diagnostic point of view modern spots से use किया गया है. We have used a type of ultrasonography only. And then the patient schedule, because this is case report. Case report is for one patient. We have discussed previous one also. Okay. So यहाँ पे सारा concentration एक ही patient के ऊपर था, तो it is well done. Limitations again because this is case report, तो इसको generalize नहीं किया जा सकता अभी. Okay. Then follow period पे भी कुछ point आया है, like it is only 4 months they have observed, but as last time also Dr. Loh has said that there can be recurrence for more than 4 months or 5 months, तो उसको और लंबा follow किया जा सकता था. और comparative data is absent. Comparative data here means normal छाछूत और इस इफेक्ट टेक्निक में कंपैरिजन कैसे होगा? What is the basic time limit in that part and this part? What was the तो अपन ने लिमिटेशंस की बात की, बट इसको टेबल बना के भी इसको समझाया जा सकता था कि how we can understand the differences. तो वो बोलते हैं comparative data. फ्यूचर में क्या कर सकते हैं हम लोग इस पेपर के आधार पर, लाइक मल्टी सेंट्री ट्रायल्स कैन बी बिगर ट्रायल्स, तो अपने यहाँ भी हो सकता है. कंपैरेटिव स्टडीज शुड बी देयर, लाइक मॉडर्न उसको 3-4 को कंपेयर करके कंट्रोल ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं. मींस वी कैन मूव फॉर आरसीटीज फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो, एंड देन द फॉलोअप शुड बी लॉन्ग टर्म्स. सो व्हाट आर टेक अवेज? तो इट इज एन इवोल्यूशन. सो ऑलवेज रिमेंबर आगे बढ़ना है तो वी हैव टू इन्वॉल्व इन सम न्यू थिंग्स आल्सो. पुराने को साथ लेके चलना है, लेकिन नई टेक्निक को भी वी हैव ट्राई टू यूज. वी हैव टू लर्न दिस टेक्निक्स एंड यूज इन आवर ट्रेडिशनल पाथवेज. इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक कभी भी किसी का नहीं होता है. दिस इज डन बाय इंजीनियर्स, दिस इज डन बाय बायोटेक्नोलॉजिस्ट. तो ऐसा नहीं वो एमबीबीएस वालों का, ये बीएमएस वालों का, बीएमएस वालों का. टेक्नोलॉजी यू शुड नो हाउ टू यूज इट इन योर प्रोस्पेक्ट. Then this is evidence based, everybody is checking for evidence, but we need training here. So this type of phenomena we need training. तभी सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? शल्य तंत्र नाम. तंत्र means where techniques has to be learned by hand on training. किताबों से पढ़ के ये सीखा नहीं जाता. You have to go for on hand training. So this was the prospect for this paper. So means what does SHAR do so that the reoccurrence of the fistula does not occur? That's my question. You were a presenter. SHAR का मेन एक्शन ही होता है कि वो ना रिस्ट्रिक्शन करता है. जो सीएटीडी अनवांटेड टिश्यू जो बन रहा है ना, उसका रिस्ट्रिक्शन करके उसे रिलीज करता है. मुझे ये सही कह रहा है. SHAR है मल्टीपल एक्शन ना, छेदन, भेदन, धारण, लेखन, शोधन, रोपण. हाँ, so I think it acts upon the primary focus. It dissolves the infection, it drains the infection, it cleans the wound, and then heal the wound. So it has everything to basically to heal that wound.
all the properties of the shower lines. That's it. That's why it's a gold standard. तो बस इसमें ये भी होता है कि लाइक एक ही छार सभी भी यूज कर सकते हैं, कि मेडिकेटेड छार। एक्चुअली क्या है कि छार सूत्र जो पहले पीके देशपांडे जी ने बनाया, तो उन्होंने उस पर फर्दर स्टडी भी हुई है, कुछ उनके डोसिक डोमिनेंस के अकॉर्डिंग भी हुआ है कि ये इस डोज में ज्यादा अच्छा काम करेंगे। मेरा PhD थीसिस इसी चीज पे है कि हम फिस्टुला भी, क्योंकि फिस्टुला सारे अगर हम मॉडल में देखते हैं तो दे आर जनरल फिस्टुला एंड द क्लासिफाइड एज that is simple that is the basically that basic classification. Now it's absolute. We are not using that classification. We are using now the past classification, which is the fistulous tract is in relation to the sphincters. If it is in between the sphincter, then intersphincteric, then transsphincteric, suprasphincteric and extrasphincteric. These are the 5 base categories. So now this classification is in practice. Simple and complex is now absolute. So we are not using any more that. On the top of that, nowadays so we are using the to classify the fistula on the basis of the finding of the MRI. There is different grading, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. तो बेसिकली अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो we are not classify fistula as a common fistula on the basal tract. We have the classification on the basis of their dosic predominance. Vata fistula, pitta fistula, kapha fistula, then one sannipatajan, then one agantuja, the traumatic fistula. But in modern we have only fistula, and that is the is classified on the basis of the tract, not the basis of the pathology. If we see Ayurvedic perspective, so the pathology will be different, the dosic predominance will be different. So if you use the want to char sutra on the basis of the drug, then we have to classify or the take our cases on the basis of dosic predominance also. मतलब तब आपको अगर आप डोज के अकॉर्डिंग छार सूत्र यूज करना चाह रहे हैं, डिफरेंट छार सूत्र यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको जो पेशेंट ले रहे हैं उनकी डायग्नोसिस भी वैसे बनाना पड़ेगा, वातज भगंदर, पित्तज भगंदर, कफत भगंदर। अगर वैसा करते हैं, मेरा PhD किसी दूसरी चीज पे है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन इजी मीन्स क्योंकि डायग्नोसिस थोड़ा कठिन है, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है हमको हिस्ट्री टेकिंग में, पेशेंट के इवैल्यूएशन में कि उसका प्रगति कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर इन जनरल हम देखते हैं तो वो एक फिस्टुला है जो एक ट्रैक है, एक इन्फेक्टिव ट्रैक है, क्रॉनिक नॉन हीटेड इन्फेक्टिव ट्रैक, एबनॉर्मल। हाँ, सो दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द एनस और द आउटसाइड द स्किन और रेक्टम फ्रॉम द आउटसाइड स्किन। तो यहाँ पे जो स्टडी इन लोगों ने की है, दैट इज जो लिया है वो एक इफ्टेक इज अ काइंड ऑफ छाछूत, वो छाछूत से अलग नहीं है, छाछूत थेरेपी ही है। तो मैं थोड़ा सा इधर बोर्ड यूज कर सकता हूँ। जो फाइनली आपको थोड़ा समझ में आएगा, हमको एक फिगर चाहिएगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनस है, यहाँ पे अंदर एक म्यूकस लेयर है ना, फिर इसके बाद ये इंटरनल स्फिंक्टर्स है यहाँ, ठीक है। इसके बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, वो डिवाइड होते हैं फाइबर से अलग अलग, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो मैं जस्ट बेसिक बता सकता, ये अब ये जो स्पेस है, दिस स्पेस दैट इज द इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस, है ना। क्योंकि ये एनस एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, ऐसे है ना, तो ये स्पेस सब तरफ है, ऐसा नहीं सिर्फ पीछे ही, अंडरस्टैंड।
this intersphincter space is all around. Huh? But the posterior side of the intersphincter space has more crypts, anal crypts. That is the cryptoglandular infection is told. The fistula develop because of the cryptoglandular infections. The more crypts are here present. That's why the most of the fistula has a main focus at the 6 o'clock position. So, what is the difference between the normal conventional Charles therapy and the IFTAC technique? Is that suppose any patient has fistula, have the intersphincter tract here, abscess, means here, and it has an external opening at here. Yeah, here, and internal opening here. Okay? So now it's crossing both the sphincters, internal sphincter as well as the external sphincters. So this will be the transsphincter. Transsphincter fistula. तो नॉर्मल जो छाछ थेरेपी हम जो करते हैं उसमें क्या करेंगे, हम एक छाछ यहाँ से डालेंगे और यहाँ से ऐसे इसको टाई करेंगे, है ना. Then so the छाछ goes inside, it dissolve the infection, it drain the infection because it acts as a thread. So with the capillary action, whatever the infection is drained with the thread, come out, wound become fresh, means unhealthy. All the unhealthy tissue is drained out. If the wound is healthy, then it will start healing and then shrink it, and slowly the tract becomes smaller, and then it happens. That's it. That is the normal conventional Charles therapy which we are doing in most of the cases. In the IFTAC technique, they are using IFTAC technique when the tract is comparatively long. I'll make one more diagram. This is the anus, and here there is the external opening. Means the external opening is long. If we go with this conventional technique, so we put the charcoal from here to anus, so it will take long time to cut the tract and go. So there is one good source rule that it says, when you study with in detail, that most of the if you draw a line here and we see the external opening, if the external opening lies below this line, anywhere, here, anywhere, most likely the internal opening will be at 6 o'clock. If it is above, then there is a diameter, means from the radius of the 2 to 3 centimeter. If it is inside this, then it will go directly. If it is out from that diameter, then anywhere it will go into the 6 o'clock. Understand? So whether here or here, if it is opening, this is the anus close to here, it's not likely to go directly. Okay? But if it is outside the 2 to 3 centimeter, it most likely going to the 6 o'clock. Understand? So if here we use the conventional technique, we'll have the patient for long time. Patient will be visited long time because it takes long time to cut the tract. But if we use the IFTAC technique, so IFTAC is this is the interception of the fistulous tract. So what happened? We all know the basic pathology here at a 6 o'clock position into the intersphincter space. Okay? So here we are doing, we just discontinue the tract from here. We make an artificial opening here and put the charcoal here. So by doing this, we are intercepting the tract. And we are making the tract smaller, because if the tract is how much long, it do not if tract is very much long even, but if you are not healing this main focus,
it will not heal properly. It will have the recurrence, surely recurrence. So the main important that we have to target the main focus, the main crypts. If you are not healing the main crypts, you will not able to heal the tract. If you once heal the tract, the other tract, because the fistula, the internal wall of the fistula is a fibrous tract and having the granulation tissue. If you once clean it, then if the further infection is not there, it will heal by itself. It will collapse. The tract will collapse. So IFTEC technique is a newer technique developed by the Padma Shri Sahuji from IMS BHU. But never means in surgery, in the new things, if it is within 5 to 10 years, it's called new. Old means if it is 20, 30 or 50 years. And this technique developed by him only. Now the multiple people are doing it. I am also doing it. But since now I have done only single case. The problem is that you cannot do IFTEC by the seeing somebody else and by doing the only single case. You have to see multiple times and you must be very, very experienced, because the tract is long, it may be deep also. So you have to find the tract here and you have to intercept here and you have to make the communication proper. So because it is very likely you can get the false tract. If you are not experienced enough, you will develop the false tract here. So in spite of healing the old fistula, you are creating a new fistula also. That's why this is a technique which will be done by only the experienced person. It is not for the new person. First of all. Second thing, it is most likely the successful only when the tract is a linear and single tract. If the tract is multiple, then there are chances of the failure also. If the focus are multiple focus are there, if the single focus are, it's okay. If some focus are here also or other side also, then if you do IFTEC, you will get failure, because we have to deal all the. If they are all communicated with a single focus, then you can heal it. Otherwise, it's still difficult to heal. So IFTEC is a newer technique. It should be done only by the experience. But it also has some limitations. अगर छोटा सा ट्रैक है, 2 सेंटीमीटर का ट्रैक है, तो इसकी जरूरत नहीं है. Track is, if it is long, then you can do it. You understand? And it should be done by experienced person only. Otherwise, you will create the false opening. Or if you are doing like this and you are not aware about it, the posterior side, it looks big in the picture only, but it's not that much big. Behind there is a rectum also. If you are doing here something and you are going, you can pierce the rectum also. If you are not going, you can perforate also, or creating the false track. So that's why it's should be done very carefully. Anyone, any question? Any other question? सर छाछ में से थ्रेड यूज करते हैं, तो उसको डालते कैसे? लाइक वो तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा ना. छाछ को केवल थ्रेड नहीं डालते हैं, उसको प्रोब के साथ माउंट करते हैं. ये ट्रैक है ना. तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं प्रोब, पेशेंट बोलते हैं आयुर्वेद में. उससे पीछे एक आई होती है, सुई समझो एक, बस ये ब्लंट होता है, ठीक है. तो इसमें हम थ्रेड को डाल देते हैं, जैसे सुई में धागा डालते हैं, प्रोब को यहाँ से इंसर्ट करते हैं और इधर से जाकर इधर बाहर से निकाल देते हैं. तो जैसे हम सुई में धागा डालते हैं, तो ऐसे ही धागा आ जाता है. सुई को अलग कर, प्रोब को अलग कर लेते हैं और ये 2 नॉट है, इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं. केवल थ्रेड को नहीं डाल सकते, अभी तक ऐसा थ्रेड नहीं बना है. हो सकता है इनोवेशन हो, आगे हम बना भी सकें, कुछ ऐसा मटेरियल हो जो हार्ड एनफ भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, तो हम उसको सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं. बट उसमें भी कुछ रहेंगी कंडीशंस की, ट्रैक लेंथ की भी. कितना भी हार्ड बनाएंगे, वायर तो नहीं बना सकते,
तो उसका एक ड्यूरेट होगा, एक कैपेसिटी होगी कितना लंबा वो होल्ड कर सकता है। तो छोटे ट्रैक है तो आप केवल थ्रेड भी डाल सकेंगे, हो सकता है इनोवेशन, दैट इज इनोवेशन इन मे हैपन लेटर, बट अभी तक तो नहीं है, अभी तक आपको प्रोब चाहिए होगा। और सर ये थ्रेड का मोस्टली जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका तीक्ष्ण और कसाई प्रॉपर्टी तो हो गई कि उसको निकालना है फिर से गला के, तो उससे ऑब्वियसली पेशेंट को बहुत पेन होगा, तो उसको कैसे डील करते हैं? बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, बट पेन तो होता है, कांट से इट्स पेनलेस प्रोसीजर, बट क्या है कि वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। When you apply Charso, it will pain only 10 to 15 minutes, then it start dissolving, और फिर वो स्लो रिलीज करता है। इसीलिए हम जो Charso तो बनाते हैं ना, तो बहुत सारी कोटिंग करते हैं। हाँ, 7 बार, पहले हम 11 बार का कोटिंग करते हैं स्नोई शीट, है ना, फिर 7 बार कोटिंग करते हैं स्नोई शीट प्लस क्षार पाउडर, कोई भी क्षार आपने चूज किया, फिर उसके बाद 3 कोटिंग होती है स्नोई शीट और प्लस हरिद्रा पाउडर, है ना। तो ये जब हम कोटिंग करते हैं तो इसको हम बार बार कोटिंग करते हैं, हर बार कोटिंग करते हैं फिर सुखाते हैं, फिर कोटिंग करते हैं फिर सुखाते हैं। तो जब हम Charso को इसमें लगाते हैं तो इसमें ऊपर की जो लेयर है वो तो जल्दी ही डिसॉल्व हो जाती है, बट अंदर की जो ड्रग्स है इसके अंदर ना वो धीरे धीरे रिलीज होती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। So Charso is a integrated drug delivery system, एक अंदर जाता है अपने साथ ड्रग लेके जाता है और बहुत स्लो रिलीज होता है ड्रग्स का। तो छार का जो एक्शन है वो स्लोली होता है, इसीलिए हम उसको वीकली चेंज कर देते हैं, हमको हर हफ्ते उसको रिप्लेस करके नया डाल देते हैं। और नया डालने के लिए उसको फिर से प्रोब नहीं करना होता है, इसी में पुराने वाले में हम यहाँ पे बांधते हैं, यहाँ पे बांधेंगे, नया वाला यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से कट कर देंगे, तो जब इधर से खींचेंगे तो ये अपने आप अंदर जाएगा और फिर करा देंगे। ठीक है, थैंक्स। Any other question? Okay. First year, like first 2 questions, then first other 2 questions for the second year, and finally we'll be getting the last 2 questions. So are you ready? And the rule will be as usual. Those who will be raising their hand first will be awarded for answering. 2 times, not more than 2. And one question we can answer. So first question, if TAT stands for the, let me read that question, okay? An option infection of the fistula tract with diabetic char, intersection of fistulous tract with application of char sugar, internal fistula tract with the char application, integrated fistula treatment using SCM char. Sakshi. Okay, so correct answer. Which therapy is considered the gold standard for treatment anal fistula diabetes? And now, the first question for you is, let me read the question, then please answer. What is the main advantage of endoanal ultrasonography used in the anal fistula diagnosis? Second है या? Okay. Option number C. It prevents recurrence on its own. Or next. It confirms the anatomical course of the fistula. हाँ, एक आंसर बस डी। आगे इसमें डी को याद रखते हैं। डी बी इट कंफर्म द एनाटॉमिकल कोर्स ऑफ द फिस्टुला। करेक्ट आंसर। Which of the following is drawback of the conventional char suture therapy? C. Okay. D answer. Multiple husband visit and love is number. Okay. So, for the final year, last 2 questions.
Okay, I'm going to read the question now. After the question is around there, after you have to read them. Okay? The main reason for recurrence in the complex anal fistula is Pallavi. B. Non-identification of infected and tip. Secondary, extension of abscess. Next question. In the case report, which anesthetic formulations were prescribed post-operatively? B. Trifluridine and Trifluridine. Trifluridine and Trifluridine. So this question was uniquely answered by each and everyone. So thank you so much for the active participation.